بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مجھے سب معلوم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہوئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی ہی ماں تھی۔ میرا نام امامہ ہے۔ میرے ابو ایک انڈسٹری میں اہم عہدے پر فائز تھے۔ گھر میں اچھی خاصی دولت کی ریل پیل تھی، لیکن میری امی جو ایک قدیم گاؤں سے تعلق رکھتی تھیں وہ خوش نہیں تھیں۔ ان کی سوچ بھی بالکل ویسی ہی دقیانوس تھی جیسی ہم آج کل اپنے ارد گرد گاؤں والوں کی دیکھتے ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ جس عورت کی نرینہ اولاد ہو بس وہی اس دنیا میں آگے بڑھ سکتی ہے، اور اسی کا پلڑا اپنے سسرال میں بھی بھاری رہتا ہے۔ امی اکثر مجھے مارتی تھیں اور تانے دیتی تھیں کہ تم منحوس ہو، تمہارے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی کیونکہ تم ہمارے خاندان کا کالا سایہ ہو۔ میں چھوٹی تھی لیکن ان کی باتوں کو خوب سمجھتی تھی اور ان کے انداز سے بھی خوب واقف تھی۔ میں نے پیدا ہونے سے لے کر اب تک امی کی ممتا کا ایک لمحے بھی احساس نہیں کیا تھا۔ انہوں نے آج تک مجھے کبھی گود میں لے کر پیار بھی نہیں کیا تھا۔ ابو اپنے کام کے سلسلے میں اکثر ملک سے یا پھر شہر سے باہر ہی ہوتے تھے، اس لیے امی کو اپنی من مرضی چلانے کا خوب موقع مل جاتا تھا اور ان پر کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہ تھا۔ میں نے اپنا سارا بچپن اسی قسم پرسی میں گزارا تھا۔ جب میرے اسکول میں دوستوں کی مائیں آتی تھیں تو میں تب بھی بہت روتی تھی کیونکہ میرے بابا کے پاس وقت ہی نہیں تھا، اور میری امی کو میری اتنی فکر نہیں تھی کہ وہ میری پڑھائی اور اسکول پر توجہ دے سکتی۔ وہاں کیا ہو رہا ہے، میں کیسے پڑھ رہی ہوں، انہیں اس چیز سے بالکل بھی کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ اسی طرح کے حال میں نے اپنی زندگی کے 6 سال گزارے تھے جب میری امی ایک بار پھر امید سے ہوئیں۔ ان دنوں وہ کافی خوش بھی رہنے لگی تھیں اور کافی پریشان بھی۔ وہ اکثر مجھے لے کر اپنے ساتھ کسی بزرگ کے مزار پر جایا کرتی تھی۔ وہاں کا ماحول اتنا عجیب سا ہوتا تھا، مجھے اپنی امی سے ہی نفرت ہونے لگتی تھی۔ وہاں عجیب عجیب سے گندے لوگ بال کھلے کسی نہ کسی کونے میں بیٹھے نشہ کرنے میں مشغول ہوتے تھے۔ کہیں نہ کہیں لنگر بٹ رہا ہوتا تھا جس کی قطار باندھنے کی بھی کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی۔ مرد اور عورت سب ایک ہی جھرمٹ میں لنگر لینے کے لیے تگدوں میں لگے رہتے تھے۔ وہاں مرد اور عورت کی بھی کوئی تمیز نہ تھی۔ ہر وقت ڈھول کی تھاپ پر عجیب سا رقص اور گندی نگاہوں سے گھورتے ہوئے لوگ مجھے زہر لگتے تھے۔ میں نے کئی بار ٹالنے کی کوشش کی اور امی سے کہا بھی کہ مجھے ساتھ لے کر نہ جائیں، مجھے وہاں جانا اچھا نہیں لگتا۔ ابھی میں نے ذرا سی ہی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا کہ امی نے زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور خوب پٹائی کی۔ وہ پہلے بھی مجھ سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن ان کے ایسے جنونی انداز میں مجھے مارنا کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ خوب مارنے کے بعد جب وہ تھک گئیں تو انہوں نے مجھے نہا کرانے کو کہا۔ اس وقت دسمبر کے دن تھے اور میں ان کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے نہا کر آئی تھی اور پھر ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں جو عامل بابا تھے وہ بھی مجھے کچھ ٹھیک انسان نہیں لگتے تھے۔ وہ جان بوجھ کر وہاں آئی عورتوں کو کئی جگہ ہاتھ لگاتے تھے۔ پتہ نہیں وہ عورتیں کچھ بولتی کیوں نہیں تھی اور ان بابا کی عزت بھی کرتی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے امی تھیں۔ وہ تو ہزاروں روپے بابا کے قدموں میں نچھاور کیا کرتی تھیں اور یہی کہتی تھیں کہ میری آنے والی اولاد آپ کی مرہون منت ہے، ورنہ میری بیٹی کا تو ایسا کالا سایہ تھا مجھ پر، آپ نہ ہوتے تو شاید میں اولاد نرینہ کو خواب دل میں بسائے ہی اس دنیا سے چلی جاتی۔ ان الفاظ نے میرے ننھے ذہن پر برا اثر ڈالا تھا۔ ابھی میں انہی پر غور کر رہی تھی کہ اس عامل نے مجھے ہوس والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے میری امی کو کہا کہ تمہیں اپنی منت یاد ہے نا، اگر بیٹا ہوا تو اپنی بیٹی کو ساری زندگی کے لیے یہاں مجاور بناؤ گی۔ میں چھوٹی ضرور تھی لیکن گھر والوں کی عدم دلچسپی نے مجھے اتنا سمجھدار ضرور بنا دیا تھا کہ میں عامل کی باتوں کا مفہوم اور اس کی نظریں آسانی سے سمجھ پا رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنی امی کی طرف دیکھا کہ شاید وہی اس بات پر اسے کچھ کہیں، لیکن انہوں نے جو کہا وہ سن کر میرا دل کیا کہ میں مر جاؤں۔ انہوں نے کہا، پیر صاحب یہ کون سی کہنے کی بات ہے، اللہ مجھے بیٹا دے تو میں کیوں اس کلنک کو اپنے ساتھ لے کر پھروں۔ اس دن کے بعد میں نے دل ہی دل میں دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ اللہ مجھے بہن دے دے، میری امی کو بیٹا نہ ہو، ورنہ وہ مجھے کہیں بھی چھوڑ آتی۔ لیکن میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اگر میری بہن ہوئی تو اس کا حال بھی مجھ جیسا ہی ہوگا۔ اب میں دل میں تہیہ کر چکی تھی کہ اگر میری بہن ہوئی تو میں اس سے بہت پیار کروں گی، کبھی بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میں اب کئی دن سارا وقت یہی دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ اسکول میں بھی مجھے یہی پریشانی راہک رہتی تھی کہ اگر میں کہیں اور چلی گئی تو کیا ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں مکمل یقین ضرور تھا کہ میری بہن ہی آئے گی۔
लेकिन चंद माह के बाद मेरी सारी दुआएं रायगां गई थीं और अल्लाह ने इस दुनिया में मेरा भाई भेज दिया था। सब लोग खुश थे, लेकिन अम्मी के चेहरे पर अजीब सी रौनक आ गई थी जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। मुझे उनके चेहरे की खुशी देखकर यह लग रहा था कि शायद वो भूल गई हैं कि उनकी कोई मन्नत भी थी। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे और साद भी बहुत प्यारा सा था कि मुझे उस पर प्यार आ जाता। अम्मी ने उसके बाद ऐसी कोई बात किसी से भी नहीं कही थी, इसीलिए मुझे लगा कि शायद वो मेरा वहम था और मैं बिला वजह ही परेशान होती रही। अभी मैं पुरसुकून हुई ही थी कि वो तूफान आ गया कि जिसने मुझे कई दिनों से सोने नहीं दिया था। अम्मी ने मुझे अच्छे से तैयार किया था और काफी खुश थी। उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग छोटे के कपड़े लेने जा रहे हैं। अब्बा हस्बे मामूल बाहर किसी मुल्क में गए हुए थे। अम्मी साथ को काम वाली के पास छोड़कर मुझे साथ लेकर चली गईं। मैं सारा रास्ता बहुत खुश थी। पहली दफा मैं और अम्मी ऐसे कहीं जा रहे थे, लेकिन मेरी खुशी हवा बनकर तब उड़ गई जब हम उसी मजार पर आ गए थे। मैं जो समझ रही थी अम्मी भूल गई हैं, वो मेरी गलत फहमी थी। अम्मी मुझे लेकर सीधा उसी बाबा के पास पेश हुई और कहना शुरू किया, बाबा जी, आपकी दुआ और मेरी मन्नत ही थी कि अल्लाह ने मुझे चांद सा बेटा दिया है। मैं तो जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। मेरी हालत पहले संभल नहीं रही थी और फिर मेरा शौहर मुल्क में था। अब मैं ठीक हूं और मेरा शौहर भी यहां नहीं है। मैं आपकी इमानत आपको वापस करने के लिए आई हूं, यानी जो मन्नत मैंने मानी थी वो पूरी करने के लिए आई हूं। ये कहते ही अम्मी ने मेरा हाथ आमिल बाबा की तरफ बढ़ा दिया और फिर मैं रोती रह गई और अम्मी मुझे वहां छोड़कर चली गईं। वो दिन मेरे लिए एक कयामत का दिन था और ऐसा सिर्फ मुझे लगा था, मगर हकीकत में उस दिन के बाद आने वाले हर दिन मेरे लिए कयामत ही साबित हुआ था। मुझे लगा था कि यहां जिंदगी में वो नफरतें नहीं होंगी, लेकिन मैं गलत थी। यहां ऐसी मोहब्बतें थीं जिनके बारे में कभी मैंने सोचा भी ना था। वो मेरी आस्ताने में पहली रात थी। आमिल बाबा ने मुझे कौसर नामी एक औरत के हवाले कर दिया था। वो मुझे अपने घर लेकर गई। मुझे लगा था कि शायद मैं वहां की एक ही लड़की हूं, लेकिन मैं गलत थी। उसके घर में तो एक पूरी दुनिया ही आबाद थी, जहां 30 से ऊपर बच्चे मौजूद थे, कई लड़कियां और कई लड़के। वो सब भी शक्लों से ठीक घरों के ही लग रहे थे, लेकिन उनके हुलिये बिल्कुल मुतजाद थे और साफ नजर आ रहा था कि ये लोग यहां पर किस हाल में रह रहे हैं। वो रात इस जिंदगी में मेरी सबसे मुश्किल रात थी। अम्मी मुझसे जितना भी नफरत करती थी या अब्बू जितने भी लापरवाह थे, मगर उस घर में हर तरह की सहूलत मुयस्सर थी। मुझे जो खाना होता मैं खान सामा को कहती और वो मुझे बना कर देता। मैं आज तक भूखी नहीं सोई थी। अपना पसंद का खाना ना मिलता तो मैं नूडल्स या बर्गर मंगवा लेती, मगर आज वहां बासी रोटी के साथ दाल देखकर मैं ये भी ना कह सकी थी कि मैं ये नहीं खाती। मैं खामोशी से खाना एक तरफ करके बैठ गई। वहां मौजूद सब बच्चे ऐसे खा रहे थे जैसे ये कोई मनोसलवा हो। वो लोग मुझे इस तरह से देख रहे थे जैसे मैं कोई खलाई मखलूक हूं, क्योंकि उस वक्त मेरा हुलिया और मेरे कपड़े वहां मौजूद सब बच्चों में सबसे बेहतर थे। मेरे बाल बहुत अच्छे से बने हुए थे। और फिर वो पहली रात थी जब मैं भूखी सोई और कोई परवाह करने वाला ना था। मगर हमारी काम वाली सरवत बाजी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे उठने से रात सोने तक वो हर चीज का खूब ख्याल रखती थी। मुझे आज अपने अम्मी अब्बू के बजाय उनकी याद आ रही थी। मेरा पेट खाली था, लेकिन मुझे अपने भाई का चेहरा याद आ रहा था, जिसकी वजह से आज मैं यहां पड़ी थी। मेरी अम्मी ने एक औलाद हासिल करने के लिए दूसरी औलाद को जहन्नुम में झोंक दिया था। अगला दिन पहले वाले दिन से भी ज्यादा कठिन था। सुबह नाश्ते में सबको 2-2 बिस्किट्स मिले थे। ये तो मैं अपने स्कूल की आधी छुट्टी में ही खा जाती थी। उस दिन वो कौसर नामी औरत सब बच्चों के साथ मुझे भी उसी आमिल की दरगाह पर ले गई। वहां सलाम करने के बाद उन्होंने मुझे एक लफंगे से आदमी के हवाले कर दिया और वो मुझे सड़क पर ले गया। उस दिन पहली दफा मुझे ये महसूस हुआ था कि कोई भी भीख अपनी मर्जी से नहीं मांगता। मैं सारा दिन उन्हीं बच्चों के साथ खाली पेट भीख मांगती रही थी। धूल मिट्टी में मेरा हुलिया इतना बुरा हुआ था कि मुझे खुद से नफरत हो रही थी। सारा दिन भीख मांगने के बाद हमें वापस पीर साहब की दरगाह पर लाया गया और वहां से हम कौसर के साथ घर आ गए। उस दिन पूरे 24 घंटे के बाद कल जैसा ही बासी खाना मेरे आगे आया था और मैंने वो जल्दी से झपट लिया। अब मुझे ये मालूम हो गया था कि सब नेमत की तरह वो खाना क्यों खा रहे थे। जब सारे दिन बाद जाकर खाना नसीब होता तो कोई भी ये खाना शौक से खा लेता। खाना खाकर हम सब
वहीं जमीन पर सो गए। अब रोज ऐसा ही होता था। एक दिन हम लोग दरगाह से वापस आ रहे थे कि किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और फिर मेरी जात के परखच्चे उड़ा दिए। मैंने रोशनी में देखा तो वो कोई और नहीं, पीर साहब ही थे। उसके बाद ये कई दफा हुआ। पीर साहब कौसर से पहले ही कह देते और फिर किसी न किसी बच्चे को वो आस्ताने पर छोड़ जाती। पीर साहब का हाथ लगने के बाद उनके मुरीद और मजावर जो हर वक्त मजार पर ही रहते थे, उनका हाथ भी काफी खुल गया था और जब उनका दिल चाहता किसी भी बच्चे को दबोच लेते। ये कई बार हुआ था और ना जाने कब तक होने वाला था। जानवरों जैसी जिंदगी से तंग आकर मैं ये चाहती थी कि भाग जाऊं। इससे पहले कि मैं ऐसा कोई कदम उठाती, मेरे सामने वो हुआ जिसके लिए कोई भी बिल्कुल भी तैयार ना था। एक बच्चे ने वहां से भागने की कोशिश की थी। मैं दिल से खुश थी कि चलो कोई तो इस जहन्नुम से आजाद हुआ और अब यहां से बाहर जाएगा। हो सकता है कि पुलिस को भी यहां तक ले आए। लेकिन जो मैं सोच रही थी हुआ उसके बिल्कुल बरक्स। पता नहीं कहां से लेकिन वो बच्चा पकड़ा गया था। पहले तो वहां से सब नशई मुजावरों ने उसको जिनसी तौर पर हरासा किया और फिर उसके बाद उसकी टांग काट कर वापस भेज दिया। उसकी चीखें सुनकर हम सबको ये साफ तौर पर पता चल चुका था कि अब यहां से निकलना हम में से किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। अगर किसी ने कोशिश की तो उसका अंजाम भी हम सब देख चुके थे। अब यहां राह फरार भी बस मौत ही था। ऐसे ही कई साल गुजरने लगे थे। मैं रोज मरती और रोज जीती थी, कई तरह की गंदी नजरें खुद पर बर्दाश्त करते हुए। मैं 18 साल की हो गई थी। अब मुझे हर चीज भूल गई थी सिवाय अपनी मां और साथ के चेहरे के, जिनकी बदौलत मैं आज यहां थी। मैं हर रोज रात को सोते वक्त और जब मुझे हरासा किया जाता तब अम्मी को याद करती थी और उनसे सवाल करती थी कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों किया गया। ऐसा क्या कसूर था मेरा जो मुझे इस जहन्नुम में जलने के लिए छोड़ दिया, वो भी सारी जिंदगी के लिए, क्योंकि यहां से निकलने का कोई तरीका था ही नहीं। हां, जब मैं बड़ी हो जाती तो मुझे कौसर की तरह एक घर दे दिया जाता। भीख मांगने वाले सारे बच्चे इकट्ठे होते, लेकिन अब मेरे मुकद्दर में सिर्फ भीख मांगना ही लिख दिया गया था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे वो मौका मिल गया जो किस्मत के किसी नेक और धनी को मिला करता है। उस दिन दरगाह पर सालाना उर्स था। हम सब वहां मौजूद थे। सब बच्चे पेट भरकर खाना खा रहे थे। किसी का ध्यान भी दूसरे पर नहीं था। मैंने इर्द गिर्द देखा और आहिस्ता आहिस्ता वहां से खिसकना शुरू किया और फिर मैं वहां से निकलने में कामयाब हो गई। लेकिन इतने सालों में मुझे ये जरूर पता चल गया था कि इन लोगों के हाथ कितने लंबे हैं। वो लोग मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। इसीलिए मैं भागती गई जितना तेज मैं भाग सकती थी। मुझे पुलिस स्टेशन जाना था। उधर रास्ते में ही एक गाड़ी आई और मैं बेहोश हो गई। मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के एक कमरे में पाया। वहां मुझे यह पता लगा कि कोई उस्मान नाम का शख्स मुझे यहां लेकर आया था, जिसकी गाड़ी के आगे आकर मैं बेहोश हो गई थी। आज 2 दिन के बाद मुझे होश आ रहा था। ये मंजर, ये चीजें, सब कुछ मेरे लिए अजनबी था। अभी मैं कुछ सोच ही रही थी कि वो मेरे सामने आया और मुझसे मुआफी मांगने लगा और मुझसे पूछा कि आप यहां कैसे आई। तब मैंने उसे अपनी सारी कहानी सरसरी से बता दी कि मुझे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था जो मुझसे भीख मंगवाते थे और फिर आज मैं वहां से भाग आई थी। मेरी कहानी सुनकर उस्मान बहुत अफसुर्दा हुए। मैं जितने दिन भी अस्पताल में रही, उस्मान ने मेरी बहुत खिदमत की और हर तरह की सहूलत मुझे फराहम की। जिस दिन मुझे वहां से छुट्टी हुई, उस्मान ने पूछा कि अब आप कहां जाएंगी। मेरे पास कोई ठिकाना तो था नहीं, इसीलिए मैंने साफ बता दिया कि मैं बेसहारा हूं। मेरी बात सुनने के बाद उस्मान ने मेरा हाथ थामा और मुझे एक मस्जिद में ले गए। मैं तो हैरान सी थी कि यहां आखिर होने क्या वाला है। और फिर मेरा और उस्मान का निकाह हो गया। मैं एक ऐसी लड़की थी कि जिसने सारा बचपन भीख मांगी थी, उसकी शादी एक शहजादे से हो रही थी। मैं उस्मान को अपने साथ होने वाले सारे जुल्म और ज्यादतियों के बारे में पहले ही बता चुकी थी, लेकिन वो सब जानते हुए भी उस्मान ने मुझसे शादी की थी। निकाह के बाद मुझे वो अपने साथ अपने घर ले गए। वो घर देखकर मुझे एक और धचका लगा था। ये तो वही घर था जहां मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। ये तो मेरा ही घर था, लेकिन उस्मान यहां क्या कर रहा था? मेरे बाबा और अम्मी कहां गए थे? मैं परेशानी से हर तरफ देख रही थी। यहां सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं छोड़ कर गई थी। वो दरो दीवार, वही पौधे, वही कमरे, सब कुछ, यहां तक कि इतने साल बाद
खानसमा भी वहीं था। इस पूरे घर में एक छोटे से बच्चे की तस्वीरें लगी हुई थीं और उस चेहरे को मैं खूब पहचानती थी। ये साथ था, मेरा भाई, वो भाई कि जिसकी पैदाइश के लिए मेरी अम्मी ने मेरी जिंदगी की कुर्बानी दी थी। अभी मैं ये सब देख ही रही थी कि कुछ लोग हॉल में दाखिल हुए और उन्होंने उस्मान से मेरे बारे में पूछा। उसने सबको बता दिया कि मैं उसकी बीवी हूं। मेरा रुतबा जानने के बाद उसे बहुत सारी बातें सुनने को मिली। उन लोगों में मेरी अम्मी और अब्बू भी शामिल थे। उस्मान कमरे में आकर मुझे तसल्ली देता रहा, लेकिन मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर उस्मान और उनका खानदान यहां क्यों रह रहे हैं। मैं कुछ दिन इसी कश्मकश में रही। सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती, वहीं खाना खाती, लेकिन मेरा दिमाग अभी तक यही ताने बाने बुनने में मसरूफ था कि उस्मान है कौन। फिर एक दिन मैंने बातों ही बातों में उस्मान से उसके बचपन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो तो सारी उम्र दुबई में ही रहा है, चंद साल पहले ही यहां आया है। तब जाकर मुझे याद आया कि मेरे ताया अब्बा शुरू से ही दुबई में मकीम थे और उनके एक बेटे का नाम उस्मान था। ये जानने के बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे तासुरात कैसे होने चाहिए। जिस घर से मैं निकाल दी गई थी और पूरी दुनिया की रुसवाई हुई थी, इतने सालों बाद अल्लाह ने उसी घर में मुझे वापस भेज दिया था, वो भी मेरे महरम के साथ। मेरे अब्बू और मेरी अम्मी को तो मैं देख चुकी थी, लेकिन साद वो कहां था? मैंने अब तक किसी को भी घर के अंदर साद का नाम पुकारते हुए ना सुना था। अब मैंने ये फैसला किया कि मैं घर वालों के साथ अपने ताल्लुकात थोड़े बेहतर बनाऊंगी। इसीलिए मैंने उनके लिए खाना बनाना शुरू किया और सबके साथ कुछ बातें भी की। अब सबका रवैया मेरे साथ ठीक रहने लगा था। एक दिन अब्बू लॉन में अकेले बैठे थे, तब मैं उनके पास बैठ गई और उनसे दिल की बातें करने लगी। अब्बू इस घर की वाहिद शख्सियत थे जो अब बदल गए थे। वो काफी खामोश रहते थे और उदास भी, जैसे उनके दिलो दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा हो, लेकिन किसी से इजहार न कर पा रहे हों। मैंने उनसे सारे खानदान के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे खानसमा से लेकर माली तक सब लोगों का बताया, सिवाय मेरे और साथ के। अभी मैं मायूस हुई ही थी कि उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी भी थी जो कि बचपन में खेलते खेलते पार्क से कहीं गुम हो गई थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे वो मिल न सकी। मैं आज तक उसे ढूंढ रहा हूं। और एक बेटा भी है साद, जो इस दुनिया से ताल्लुक ही नहीं रखता। आखिरी जुमला कहते हुए वो अफसुर्दा होकर आंसू साफ करते हुए उठ गए, लेकिन मेरा ध्यान अब भी वही था कि साद के बारे में उन्होंने आखिर ऐसे क्यों कहा। और एक बात मैं आपको बता चुकी थी कि अम्मी ने उन्हें आज तक इस हकीकत से अनजान ही रखा था कि मैं गुम नहीं हुई थी, बल्कि मुझे वो खुद मजार पर छोड़कर आई थी। इसी तरह मजीद कुछ वक्त गुजर गया। अब सब लोग मुझसे ठीक तरीके से बात करते थे। अब मैंने अम्मी से पूछा कि उस दिन अब्बू किसी साथ के बारे में पूछ रहे थे, वो कहाँ है? लेकिन वो जवाब देने के बजाय टाल गईं। मुझे इस बात ने बेहद परेशान किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिस बच्चे की घर में कई तस्वीरें हैं, वो बच्चा कहाँ है? लेकिन मुझे मेरे सवालों का जवाब अब तक किसी ने ना दिया था। कुछ दिन मजीद गुजर गए थे कि मैंने एक बार साद की तस्वीर पकड़ी और कहा कि मैं इन्हें हटा रही हूं। तब सब लोग एक साथ बैठे थे। अम्मी फौरन आगे बढ़ी और मेरे हाथ से वो फ्रेम पकड़ लिया और वजह पूछी। तब मैंने कहा कि एक बच्चा जो घर में है ही नहीं, कोई उसके बारे में बात तक नहीं करता, उसकी तस्वीर क्यों रखी जाए? ये बात सुनकर अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और घर के एक कोने में कमरे में ले गई, जहां अंधेरा ही अंधेरा था। उन्होंने रोशनी जलाई तो कमरे के एक कोने में एक कमजोर सा वजूद पड़ा था, जिसे जंजीर से बांधा गया था। तब मुझे ये पता चला कि किस्मत ने अम्मी के साथ कैसा खेल खेला था। उन्होंने जिस बेटे के लिए मुझे कुर्बान कर दिया, वो पागल और जहनी माजूर निकला था। मैं फौरन से आगे बढ़ी और साथ को गले लगा लिया और ऊंची ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया, मेरा भाई, मेरा भाई। कुछ देर के बाद मैं गुस्से से उठी और अम्मी से सवाल किया, तो कैसा लग रहा है आपको? अपनी जिस औलाद के लिए दूसरी को कुर्बान कर दिया था, किस्मत ने आपसे वो भी छीन ली। आप किसी एक औलाद को भी ममता ना दे सकी। ये बातें करते मुझे जरा ध्यान न रहा कि वहां सब मौजूद थे। सबने मेरी हकीकत जान ली थी और मैंने उसके बाद सच्चाई से आहिस्ता आहिस्ता सबको आगाह करना शुरू कर दिया कि कैसे अम्मी मुझे दरगाह पर छोड़ आई थी और वहां मेरे साथ क्या क्या होता रहा, और फिर मैं वहां से कैसे भाग गई। अब्बू ने वो बात सुनकर मुझे गले से लगा लिया था और फिर वो अम्मी को तलाक देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया था। मेरा मकसद ये हरगिज न था
کہ میں ایسا کچھ کروں۔ ابو نے امی کو طلاق تو نہ دی، لیکن اب بھی انہیں معاف نہیں کیا۔ مجھے وہاں رہ کر اذیت نہ ہو، اس لیے عثمان مجھے دبئی لے آئے۔ میں اپنے ساتھ ساتھ کو بھی علاج کے لیے یہاں لے آئی ہوں، لیکن امی کی معافی مانگتی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، لیکن میں انہیں معاف نہیں کر پاتی۔ کیا مجھے انہیں معاف کر دینا چاہیے؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔